Hello everyone. Welcome to hello hello everyone. Welcome to the new session. Today the chapter of discussion. Today the topic of discussion is chapter number 5 of class 12th biology, that is molecular basis of inheritance. And I am Dibranjan Parida. I am pursuing my second year MBBS in AIIMS right now. So chalo start kariye ajra topic. In the previous chapter you have learned the inheritance patterns and the genetic basis of such patterns. At the time of Mendel, the nature of those factors regulating the pattern of inheritance was not clear. Over the next 100 years, the nature of the putative genetic material was investigated, culminating in the realization that DNA deoxyribonucleic acid is the genetic material, at least for the majority of organisms. In class 11th, you have learned the nucleic acid of polymers of nucleotides. The କହିଲା ଯେ ଆମେ previous chapter ରେ inheritance patterns ଆଉ genetic basis of inheritance ଦେଖିଲେ ମେଣ୍ଡେଲ के टाइम में DNA आविष्कार ହେଇନଥିଲା, but ତାପରେ DNA टाକୁ ହିଁ जेनेटिक मटेरियल बोली जଣା पड़ला, बट सेटा किछि ऑर्गेनिज्म रा आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल ते विषय हमें पढ़िबा. Deoxyribonucleic acid DNA and ribonucleic acid RNA are the two types of nucleic acid found in living system. तो DNA full form कौन ना deoxyribonucleic acid और RNA full form कौन ना ribonucleic acid are the two types of nucleic acid found in living system. DNA acts as a genetic material in most of the organisms. DNA most of the organism में genetic material थे. RNA though it also acts as genetic material in some viruses. RNA कोटिरे genetic material थे ना viruses रहता है. Mostly functions as a messenger, but mostly कम्ती function करना RNA ना messenger. कहीं ना most of the organism में DNA was genetic material, but few of the organism में कौन जैसे कि viruses सेत्रे RNA was genetic material. But जो organism गुड़ा करे DNA टा genetic material सेठी RNA messenger भलिया भी काम करे. RNA has additional roles as well. It functions as an adapter structural in some cases catalytic molecule. केतले RNA adapter भली काम करे, केतले गोटे structural component रे से involved है, आ केतले catalytic molecule माने कोन एंजाइम में को catalytic molecule कह जाय. catalysis माने कोन को गोटे रिएक्शन को फेवर करवा या स्पीड अप करवा, आ एंजाइम मन कर काम होई से एंजाइम माने हेल्प करंती को जो मेटाबॉडी रे जो मेटाबॉलिज्म चलची से रिएक्शन गुडा को कैटालिसिस करिया को. तो सेटा होची जे आरएनए भी केता एंजाइम बोले काम करे, सेटा को एंजाइम रे काम करे, सेटा नेक्स्ट रे पढिबा. सेटा कोनती आरएनए रो कैटालिटिक मॉलिक्यूल बा भी वर्क. In class 11 you have already learned the structures of nucleotide and the way these monomers units are linked to form nucleic acid polymers. तो एडी क्लास 11 रे कोई तुम केमते न्यूक्लियोटाइड मन केमते जॉइंट है कि न्यूक्लिक एसिड बनत सेटा तुम जानिचो. In this chapter, we are going to discuss the structure of DNA, its replication, the process of making RNA from DNA, that is transcription, the genetic code that determines the sequence of amino acid in protein, the process of protein synthesis translation, and elementary basis of their regulation. तो कहला ए चैप्टर में कौन पढ़िबा ना स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़िबा, डीएनए रो रेप्लिकेशन पढ़िबा, आरएनए टा डीएनए रो केमती फॉर्मेशन हो जेटा को ट्रांसक्रिप्शन कहंती सेटा पढ़िबा, और जेनेटिक कोड विषय रे पढ़िबा जेटा कि डिटरमाइन करे सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड प्रोटीन दा सेटा को पढ़िबा. आउ प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस माने प्रोटीन सिंथेसिस टा कोन ना ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रांसलेशन कहंती, आरएनए सिंथेसिस को ट्रांसक्रिप्शन कहंती, डीएनए सिंथेसिस को रेप्लिकेशन कहंती, और आरएनए रो डीएनए होबाटा को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहंती जेटा कि केतडा वायरसेस देखा जाए, रेट्रो वायरसेस देखा जाए. एंड एलिमेंटरी बेसिस ऑफ देयर रेगुलेशन. The determination of complete nucleotide sequence of human genome during last decade has set a new era of genomics. In the last section, the essentials of human genome sequencing and its consequences we also decode. तो कॉलेज लास्ट टॉपिक रे हमें कोन पढिया ना ह्यूमन जीनोम विषय प्रोजेक्ट विषय रे पढिया. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे कोन केमती हेतला सेटा हमको केमती हेल्प करछि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ता विषय रे पढिया. Let us begin our discussion by first understanding the structure of the most interesting molecule in the living system, that is DNA. DNA सब मोस्ट इंटरेस्टिंग है. तुम छोटे वाले मूवी रे देखो गोटे क्रिएचर थी वक्त डीएनए मिक्स थी गला सेटा आउटे क्रिएचर होला. स्पाइडरमैन को स्पाइडर कामड़ देला ताको स्पाइडर डीएनए आसी होला, तापर से स्पाइडरमैन जाल छाड़ी बोला गेला. तो आज छोटे बड़ फिल्म मूवी सब रे डीएनए को गोटे बहुत इंपोर्टेंस दिया हिचे, जो गोटे मॉलिक्यूलर बा बायोलॉजिकल बेसिस पई डीएनए टा केते इंपोर्टेंट आज ता विषय में पढे जे डीएनए टा कोन. द डीएनए तो एबे टॉपिक कोन स्टार्ट करी, इंट्रोडक्शन सरला. एबे टॉपिक कोन स्टार्ट करिया ना द डीएनए.
DNA is a long polymer of deoxyribonucleotides. Then DNA कौन ना long polymer of deoxyribonucleotide. Deoxyribonucleotide कौन then आमे जदि आगु हम कहि दोछि फर्स्ट आमे जदि deoxyribonucleotide ए जिंसटा को जदि भांगिबा ततरे आछि deoxyribo आ कोन आछि ना न्यूक्लियोटाइड तडी न्यूक्लियोटाइड टा कोन न्यूक्लियोटाइड होछि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप कोन न्यूक्लियोसाइड टा कोन न्यूक्लियोसाइड होछि हमर नाइट्रोजनस बेसेस जेटा हम चारटा नाइट्रोजनस बेसेस मेनली पांचटा बट ह्यूमन बॉडी चारटा अछि तो नाइट्रोजनस बेसेस प्लस सुगर पेंटोज सुगर एटी कोन एटी डीएनए सिटमेंट डीएनए पय एटी पेंटोज सुगर कोन ना डीऑक्सीराइबोज एटी डीऑक्सीराइबोज पेंटोज तार 2 डेस पोजीशन रे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जगह रे बस हाइड्रोजन अछि एस पॉइंट डीऑक्सीराइबोज तो ऑक्सीजन गायब अछि तेज पॉइंट डीएनए कोन कहला ना डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बस तार पॉलीमर सेटा कारो ना डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड रो माने डीऑक्सीराइबो एटा हो सुगर और न्यूक्लियोटाइड तो जानिचो नाइट्रोजनस बेसेस प्लस सुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप तो सेटा से लिखला जे डीएनए टा कोन ना डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स the length of DNA is usually defined as the number of nucleotide length of number को mainly हमें number of nucleotide define करूं or a pair of nucleotide referred to as base pair or a pair of nucleotide বা base pair either number of nucleotide बोलू नने base pair हिसाब रे कैलकुलेट करो BP this is also characteristic of an organism for example bacteriophage known as एटा सब मन को एटा सब गुडा मन रखियो एटी जा देबे एटा 5 cross 174 सेटा कोन ना 5386 न्यूक्लियोटाइड सेटा कोन ना 5388 न्यूक्लियोटाइड्स और बैक्टीरियोफेज लैम्बडा बैक्टीरियोफेज माने कोन एटा गुटे टाइप रो वायरसेस जे माने कि बैक्टीरिया भितरे एंट्री करके बैक्टीरिया रे निजरो नंबर ग्रोथ करनते माने बैक्टीरिया पई एटा बहुत क्षतिकारक बैक्टीरियोफेज माने तो माने बैक्टीरिया को होस्ट भाबे यूज करके निजरो रेप्लिकेशन करके माने निजर रिप्रोडक्शन नंबर बढ़ाते रिप्रोडक्शन के नंबर बढ़ाते ताऊ कोनती बैक्टीरियोफेज जे माने बैक्टीरिया को अटैक करनती से माने कोनती बैक्टीरियोफेज एमन गोटे वायरस तो बैक्टीरियोफेज लैम्बडा गोटे वायरस हैज 4502 बेस पेयर्स एटा बेस पेयर एटी देखो तुम परे कहबी इस्चेरिचिया कोलाई तो जान इकोलाई रो 4 into 4.6 into 10 to the 6 बेस पेयर इस्चेरिचिया कोलाई गोटे बैक्टीरिया haploid content of DNA रो जे haploid human टा कोन ना 3.3 into 10 to the 9 बेस पेयर तो ए लाइन तुम से नागो जे खाली हम नंबर घोष देले हो बट एटी आउरी इंपोर्टेंट जिंस होची कोन होची ना फास्ट देखो जेते 5174 जेते कहला 5174 जेते कथा कहला इसको लेकर ना 5386 न्यूक्लियोटाइड्स एटी से बेस पेयर लेखिनी एटी से न्यूक्लियोटाइड्स लिखछि तो एग्जाम में तुमको जदि ऑप्शन आसीबो ना तुमको एटी तो दीटा नंबर से चेंज कर दो 538 जगह 5836 कर दो तापर कोन करियो आ दीटा ऑप्शन कोन गोटा करे न्यूक्लियोटाइड लिखाइतिबो गोटा करे बेस पेयर लिखाइतिबो तो सेटा हो जे तमे एग्जाम रे बॉल एबे ठीक से बॉल के मन रखि जबो जे कोठी न्यूक्लियोटाइड लिखाइछि कोठी बेस पेयर लिखाइछि सेही बोले एटी तो बेस पेयर लिखाला एटी भी बेस पेयर लिखाला एटी भी बेस पेयर लिखाला बट एटी जो ह्यूमन डीएनए कथा आसिला एटी कोन गोटे इंपोर्टेंट कथा तमे मिस कर दिजो ना एटी लिखिछि कोन ना हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए ना ह्यूमन डीएनए जता हैप्लॉइड थाए माने स्पर्म और ओव्यूम रे सेतले केतरा बेस पेयर थाए ना 3.3 into 10 to the 9 बेस पेयर थाए हैप्लॉइड कंटेंट जता थाए सेते कंटेंट 3.3 into 10 to the 9 बेस पेयर थाए तन डिप्लॉइड केमते हो डिप्लॉइड रे अधिक गुणा हो 6.6 into 10 to the 10 to the 6.6 into 10 to the 9 बेस पेयर हो तो सेटा मन रखियो एग्जाम से हैप्लॉइड पचाछि ना नॉर्मल ह्यूमन डीएनए पचाछि हैप्लॉइड थे 3.3 into 10 to the 9 लिखियो और नॉर्मल थे 6.6 into 10 to the 9 बेस पे लिखियो तापर कोन ना स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ताने हम एकले डीएनए केमि तयारी छि ना डीएनए होछि पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ताने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर तो ताने मोनोमर टा कोन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ताने ता ढेर गुडा को मिसी से डीएनए छि ताने से जो चेन टा से ढेर गुडा मिसी बनो छन जेटा कि डीएनए को आला जेटा गुडा पॉलीपेप्टाइड चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ता विषय में पढियो let us recapitulate the chemical structure of polynucleotide chain that is DNA or RNA a nucleotide has three components एठी हम स्टार्ट हला इंपोर्टेंट कथा ना a nucleotide has three components a nitrogenous base a pentose sugar ribose in case of RNA deoxyribose in case of DNA and a phosphate group how come and a phosphate group there are two types of nitrogenous bases what is purine जेटा कि adenine guanine out of pyrimidine it is cytosine uracil thymine
cytosine is common for both RNA and DNA, and thymine is present in DNA. Cytosine both रही, thymine only DNA रहता है, uracil RNA रहता है in place of thymine. तो एठी हमें कौन लिख ले ना DNA रो जो न्यूक्लियोटाइड रहिला मोनोमर तार तीनटा कंपोनेंट कौन ना नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर है कौन पेंटोस शुगर माने ए बड़े शुगर तो तार कौन ना पेंटोस शुगर जेटे के राइबोज इन केस ऑफ आरएनए और डीऑक्सीराइबोज इन केस ऑफ डीएनए राइबोज का कारण आरएनए रो डीऑक्सीराइबोज को ना डीएनए राइबोज पेंटोस शुगर जतो थाय पेंटोस शुगर थाय तार सेकंड पोजीशन रे जदी OH थिबो ता सेटा राइबोज और तार सेकंड पोजीशन रे केवल H थिबो सेटा को ना डीऑक्सीराइबोज एंड ए फॉस्फेट ग्रुप आ कोन ओडे फॉस्फेट ग्रुप There are two types of nitrogenous bases, that is purines, that is adenine guanine. Purines कौन ना adenine guanine और pyrimidine कौन ना cytosine uracil thymine. तो मेरे साइड तो मैं फोटो लगे चे adenine और guanine एंते देखा को तांकर दीटा साइक्लिक ये था साइक्लिक रिंग तांकर दीटा रिंग था दीटा रिंग गोटे होचो 6 वाला रिंग आउट होचो 5 वाला रिंग तो सेते सब एंते सब कनेक्ट हेते सब जिंस था आ गोटे ये कौन आउ हमर pyrimidine होची गोटे 6 मेंबर रिंग 6 कार्बन रिंग सेतरे भी हमसे थाय तो एडा सब स्ट्रक्चर मन रखि दबो जेटा ये जो एग्जाम पे जरूरी नहीं बट गोटे मन रखि दबोटा गोटे बेटर तो मन रखिया पे तुमको इजी मु फार्मूला भी कहि देबी तब सेटा में पर डिस्कस करिवा A nitrogenous base is linked to the OH of 1' C pentose sugar through N glycosidic linkage to form a nucleoside such as adenosine and deoxyadenosine. कारण ये कौन लिखला ना गोटे नाइट्रोजनस बेस सेटा कौन करे ना लिंक टू द OH ग्रुप ऑफ फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर जो पेंटोस शुगर हम राइबोज या डेक्सराइबोज तर फर्स्ट कार्बन रो OH ग्रुप संगरे कौन थाय ना नाइट्रोजनस बेस रा लिंक थाय केमते लिखता है ना थ्रू N glycosidic linkage to form a nucleoside. तो कौन कहला ना नाइट्रोजनस बेस और जो राइबोज शुगर मिश्र से कौन फॉर्मेशन करले ना न्यूक्लियोसाइड फॉर्मेशन करले सच एज एडेनोसिन और डीऑक्सीएडेनोसिन और गुआनोसिन और डीऑक्सीगुआनोसिन एडेनोसिन इन केस ऑफ आरएनए डीऑक्सीएडेनोसिन इन केस ऑफ डीएनए गुआनोसिन इन केस ऑफ आरएनए डीऑक्सीगुआनोसिन इन केस ऑफ डीएनए साइटोडिन डीऑक्सीसाइटोडिन यूरिडिन और डीऑक्सीथाइमिडिन ए भलिया when a phosphate group is linked to OH of fifth carbon of a nucleoside through phosphoester linkage, a corresponding nucleotide or deoxynucleotide depending upon the type of sugar present is formed. तो कौन कहला जते गोटे phosphate group कहथिल ना हे देखो गोटे phosphate group तो गोटे phosphate group कौन था is linked to hydroxyl group of fifth carbon of a nucleoside. Fifth carbon of a nucleoside माने क्या fifth carbon of the ribose by deoxyribose sugar. तो through phosphoester linkage a corresponding nucleotide is formed और nucleotide by deoxynucleotide form जेतबे phosphate ता आसी तो phosphate ता आसी के जते एटे जो पेंटोस शुगर देखा हो पेंटोस शुगर रो एटा हो फिफ्थ कार्बन पेंटोस शुगर एटा हो फिफ्थ कार्बन एटा तो फिफ्थ कार्बन रो OH ग्रुप संगे जते फॉस्फेट ग्रुप ता बाइंड हुए तते कोन फॉर्मेशन हुए ना न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन हुए एटा नाइट्रोजनस बेस एटा न्यूक्लियोसाइड एटा न्यूक्लियोटाइड अंती होला नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोटाइड two nucleotides are linked through 3 days 5 days phosphodiester linkage to form a dinucleotide then कोन होला एटा देखो एटा कोन हबो एटा यार 3 कार्बन हबो एटा कोन 5 नंबर हबो एटा भी केता हबो 3 नंबर हबो एटा हबो 5 नंबर तने राइबोज बा डीऑक्सीराइबोज शुगर रो 3 कार्बन सहित 3 नंबर कार्बन रो OH ग्रुप संगरे फॉस्फेट लिंकेज फॉस्फोएस्टर लिंकेज का संग हुए ना फिफ्थ कार्बन रो ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड फिफ्थ कार्बन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोएस्टर लिंकेज का संग करे फॉस्फोएस्टर लिंकेज माने एटा का संग करे ना थर्ड कार्बन ऑफ another ribose sugar एटा कोला कोन ना 3 days 5 days phosphodiester linkage more nucleotides can be joined in such a manner to form a polynucleotide chain
A polymer thus formed has at one end a free phosphate moiety at 5' end sugar, which is referred to as 5' end of polynucleotide chain. Similarly, at the other end of the polymer, the sugar has a free OH of 3' carbon group, which is referred to as 3' end of the polynucleotide chain. तो से सही कथा मुझे बुझे से सही कथा लिखला जो पॉलीमर गोटे साइड रे गोटे फ्री फॉस्फेट मोइटी था जेटा 5th कार्बन संगर जॉइन हेते सुगर में हो राइबोस सुगर 5th कार्बन ऑफ राइबोस सुगर कनेक्ट हेते आउट एंड कोनते ना 3rd कार्बन ऑफ राइबोस सुगर संगर कनेक्ट हेते तो एई तरह से माने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते द बैकबोन ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म ड्यू टू sugar and phosphate तो एटा मन रखियो द बैकबोन ऑफ ए polynucleotide chain is formed due to sugar and phosphate. The nitrogenous base is linked to sugar moiety project from the backbone. The nitrogenous base linked to the sugar moiety project from the backbone. That is figure 5.1 देखिए गले देखो that is CGATGC लिखा है जी adenine thymine guanine cytosine तापर सेटा न्यूक्लियोसाइड है कि एडेनोसिन गुआनोसिन थाइमिडिन साइटोसाइटिडिन हला तापर सेटा पुनी यासा ना कि न्यूक्लियोटाइड हला तो सेही कथा से लिखि जे एमती कनेक्ट हे से माने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाइले ताको डीएनए कहला डीएनए बा आरएनए कहला तापर गोटे आरएनए कथा कोन लेके हम देखियो इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एन additional hydroxyl group present at 2' position of in the ribose. Also in RNA, the uracil is found at the place of thymine. So से कहता है कि RNA रे कौन कौन अलग আছে? RNA रे ribose sugar और second position OH group था जेटे के DNA रे कौन था? खाली H था. और कौन था? ना RNA रे uracil था thymine जगह रे thymine को 5-methyl uracil भी कौन थी? तो हमें से देखा another chemical name को चाहिए. ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ନା କେମିତି ତମେ ମନେ ରଖିବ କେମିତି ତମେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ସ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ପିରାମିଡ ନା ତମେ 6 कार्बन चेन କଥା ଆସିବ ଆଉ ସବୁଠୁ ଇଜି ତମ ପାଇଁ ଲାଗିବ ଯେ 6 कार्बन चेन ଟା କେମିତି ତ ଦେଖ 6 कार्बन चेन ଆମେ 6 कार्बन चेन ସବୁବେଳେ ଏମିତି କରିବା ନା ଏମିତି ବନେଇ ଦେବା ସ୍କ୍ୱାର ବନେଇ ଦେବା ଏଠି ଏଠି ଗୋଟେ n ଲଗେଇ ଦେବା ଏଠି ଗୋଟେ n ଲଗେଇ ଦେବା ଏଠି ଗୋଟେ n लगे देवा एठी ଗୋଟେ n लगे देवा 1 2 3 4 5 6 नंबर दे देवा तापर हमें ये करबा जे केमती तो फर्स्ट तुम मन रखो जे यूरासिल स्ट्रक्चर कोन हमें स्ट्रक्चर बाकू जीवा फर्स्ट तुम यूरासिल केमती मन रखो एटा तो एपर साइड दे जे तने एपर साइड को देखि कर दोचे यूरासिल केमती मन रखो यूरास फर्स्ट तुम ओडे एमती स्ट्रक्चर बनेबो ओडे रिंग बनेबो 6 कार्बन रिंग बनेबो एठी कोन हबो ना एठी इरेज करके एठी ओडे n लगे देबो एठी कोन इरेज करके एठी ओडे n लगे दे एती जगह रे एठी गोटे मिछाडी की आउडे n तापर तांग ए दीटा साइड रे ए दीटा साइड रे अछंती ना तार ऑपोजिट साइड रे एठी गोटे डबल बॉन्ड बने देबो एठी गोटे डबल बॉन्ड बने देबो एती बने देला एटा हेला बेसिक फॉर्म ऑफ कार ना पिरामिडल रिंग रो ताने यूरासिल टा केमती हो तमे एमिति अछि तुमको एठी तापर वैलेंसी ये करियर अछि एठी तो वैलेंसी गला एठी कोन थिबो एठी किछ ना माने H थिबो एठी भी H थिबो कार्बन संगरे एठी N अछि N रो एठी दीटा ही बॉन्ड अछि ए जगह रे जो N अछि यार दीटा ही बॉन्ड अछि तने एठी कोन गोटे H रहइबो एठी भी N रो एठी दीटा बॉन्ड अछि तने एठी भी गोटे H रहइबो ताबे कोन देखो ताबे तमे एठी गोटे ऑक्सीजन पके देबो एठी गोटे ऑक्सीजन पके देबो हे गला यूरासिल एठी नंबरिंग हम केम देतले 1 2 3 4 5 6 एमती 5 6 करथिले तो सेठी कोन हबो ना थाइमिन बाकी আছে थाइमिन एठी कोन गोटे ना लिखाइले तुम देखछ ना 5 मिथाइल यूरासिल ताने कोन यूरासिल हम बना दिले तापर 1 2 3 4 5 पांचटा ही पोजीशन जदी या संगरे गोटे एठी CH3 नगे देबो तने एटा हे गला थाइमिन देखो थाइमिन एठी गोटे CH3 लागि जे फिफ्थ पोजीशन एटा हे गला थाइमिन तापर कोन खाली साइटोसिन पाई टेके होगा साइटोसिन पाई कोन करिवो ना एठी जेमती थिला ना एठी जेमती यूरासिल एठी ऑक्सीजन को काट दे कि NH2 नगे दो एठी एमती NH2 नगे दो तने एटा कोन होला ना साइटोसिन एटा होला कोन ना साइटोसिन होला तो एटा दिला इजीली तुम स्ट्रक्चर कैन दो फर्स्ट हमें गोटे 6 कार्बन रिंग बने देबो एठी n आउट जगह छाडी के आउट n लिख देबो तो 1 2 3 4 एमती नंबरिंग कर देबो ताने जेठी 4 और 5 भीतर गोटे डबल बॉन्ड पके देबो डबल बॉन्ड पके दे कोन डबल बॉन्ड पके दे सला परे तापर एठी ताकर बैलेंस सैटिस्फाई करियो समस्त बैलेंस सैटिस्फाई करिवो तापर एठी जे दीटा जगह जो फांका रहल एठी गोटे डबल बॉन्ड होला
एटी एन रो बैलेंस सर्टिफिकेट हो गला आ एटी दिला जे कार्बन दिला एटी गोटे डबल बॉन्ड पके देबो एटा होला तमर यूरासिल होला तापर फिफ्थ पोजीशन रे तम गोटे खाली CH3 पके दो फिफ्थ पोजीशन गोटे CH3 पके दिला एटा होला थाइमिन तापर कोन हबो तमे फर्स्ट यूरासिल एमतिला यूरासिल कोन ना एटी जो डबल बॉन्ड होतिला याको काटी कोन करिवो ना NH2 नगे दो एटा को NH2 नगे दो हेला साइटोसिन तो एटा होला इजीली तम माने केमति मन रखिवो जे ना याको स्ट्रक्चर कि केमति तने आउथरे को केमति हो स्ट्रक्चर मन रखिवो ना फर्स्ट होची गोटे 6 कार्बन रिंग बने देबा एटी n लिख देबा एटी गोटे n लिख देबा याको 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर देबा 5 6 नंबरिंग कर देबा तने कोन हेबो ना तापरे एठी गोटे 5 6 भीतर गोटे डबल बॉन्ड पके देले एठी गोटे डबल बॉन्ड एठी NH हे गला हमर कोन ना यूरासिल हला तापर एठी गोटे CH3 पके देला कोन हे गला ना थाइमिन हे गला तापर ताको साइटोसिन केमति करिवो ए डबल बॉन्ड ओ को उड़े देबो एठी कोन करबो ना NH2 पके देबो एठी कोन ना NH2 पके देबो हे गला कोन ना साइटोसिन एटा हम देखले पिरिमिडिन केमति ड्रा करिया तापर कोन ड्रा सिखला ना प्यूरिन केमते ड्रॉ करिया प्यूरिन तंगा सबले केमते होय जानछो सबले गोटे 5 वाला ना गोटे 6 वाला रिंग रहबो ता चारि पटे 5 वाला रिंग रहबो 6 वाला तमन फर्स्ट याको दी जंग मझरे गोटे डबल बॉन्ड जो मझरे डबल बॉन्ड तापर आउ के डबल बॉन्ड बने हबो ना एठी बने हबो आ यार एठी डबल बॉन्ड अछि माने बैलेंस आउ के सैटिस्फाई करि हबो ना एठी करि हबो एटा हेला तब नॉर्मल रिंग तापर कोन अछि ना तंगर 1379 पोजीशन रे कोन थाय ना हमरो कोन कोनती सो नाइट्रोजन देखो एटी तुम नंबरिंग एटी जते कराइछि 137 137 और 9 पोजीशन कोन अछि ना नाइट्रोजन अछि 1379 पोजीशन कोन अछि नाइट्रोजन अछि तो सही हिसाब रे हम नंबरिंग कर चलिबा नंबरिंग केमति कर चलिबा हम एटी कोन करिया एटी इरेज करिया एटी गोटे n बसिबा एटी गोटे n बसिबा फर्स्ट एटी हम लिख दे n और n लिख दे जेम सेट नॉर्मल करले n और n लिख देले एटी हम एउड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखले हमें तार एटी कोन करिया ना एटी 7 और 9 पोजीशन 1379 पोजीशन त 7 पोजीशन रे हम कोन करिया n बसे देबा आ एटी 9 पोजीशन कोन करिया ना n बसे दा तो एटा हे होला हमर कोन ना बेसिक प्यूरिन रो स्ट्रक्चर एटा कोन होला हमर बेसिक प्यूरिन स्ट्रक्चर तापर एडेनिन केमति होबो एडेनिन होबो एमिति यदि 6 नंबर पोजीशन रे खाली गोटे NH2 बसे देलो 6 नंबर पोजीशन रे हाइड्रोजन जगह जदि गोटे NH2 बसे देलो एटा हे होला कोन ना एडेनिन एटा कोन हे होला ना एडेनिन हे होला तापर आ कोन वन एंड ताडू टिके डिफिकल्ट केमति करियो वन एंड केमति मन रखियो ना एटी जो NH2 थिला ता दर कोन करियो ऑक्सीजन बसे देलो हमें सबले जानचे जे केमति हुए हमें केमति बनाए तो एठी पर जदि डबल बॉन्ड बसे देले ता कोन एटी बैलेंस सैटिस्फाई हैला कि हैला ने कान एटी कार्बन रो 5टा बॉन्ड होला तने भीतर रो जो डबल बॉन्ड अछि ताको इरेज कर दो तने भीतर रो डबल बॉन्ड इरेज कर देबो एटी ऑक्सीजन बसे देबो तापर कोन करिवो ना सेकंड पोजीशन रे गोटे NH2 बसे देलो सेकंड पोजीशन रे गोटे NH2 बसे देलो कोन हेला ना गुआनाइन हेला तो एई बडा तुम माने मन रखिवो जे केमति ट्रिक केमति मन रखिया को जे सब गुडा कर नाइट्रोजनस बेस रो डायग्राम केमति मन रखो एटा होची ता ट्रिक ताने हम एति ट्रिक वाला टॉपिक सला दि तीनटा प्रैक्टिस ले तुम माने मन रखजो स्टार्टिंग रे केमति खाली सिस वाला रिंग बनेबो तापर प्यूरिन केमति ता पिरामिडिन केमति बनेबो तापर फास्ट रिंग प्यूरिन रिंग बनेगे तापर कोटी केमति ऐड करले तमर आयडेनिन और गुआनिन मिलो से विषय भी तुम माने पढियो तापर देखो डीएनए डिस्कवरी विषय डीएनए केमति डिस्कवर होला ना डीएनए इज एन एसिडिक स्ट्रक्चर डीएनए ओडे एसिडिक स्ट्रक्चर दा नाम जना पड़छि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड तने एसिड में एसिडिक स्ट्रक्चर डीएनए इज एन एसिडिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिच मिस्चर in 1869 फ्रेडरिक मिस्चर in 1869 he named it as nucleus तो फ्रेडरिक मिस्चर कोन कहले ना 1869 में फर्स्ट डीएनए ओडे एसिडिक स्ट्रक्चर बोली भाबे डिस्कवर करे ताको न्यूक्लियर नाम देले however due to technical limitation in isolating such a long polymer in intact the elucidation of structure of DNA remained elusive for very long period of time जे सतरे टेक्निकल डेवलपमेंट हेने तले 1869 रे इंदे डीएनए को पूरा एत बड़ पॉलिटोर चैनल को एक्सट्रैक्ट करी के माने आइसोलेट करी के ता पर रिसर्च करिया को तो सेपरेट किछ ही बनतला हाउ it was only in the 1953 then
मसिया मन रखिबो कोन इट वाज ओनली इन द 1953 that James Watson and Francis Crick based on X-ray diffraction data produced by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin proposed a very simple and famous double helix model of for the structure of DNA. ସେଠି କଣ ପଡିଲା ନା ଏଠି ଚାରିଟା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ର ନାଁ ଦେଲା କଣ ନା ଜେମ୍ସ ୱାଟସନ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ କ୍ରିକ୍ 1953 ରେ ଜେମ୍ସ ୱାଟସନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ କ୍ରିକ୍ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉडल से इंट्रोड्यूस कले एक्सप्लेन कले बाय द हेल्प ऑफ द एक्स्ट्रा एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन मॉरिस विल्किंस एंड फ्रैंकलिन कोन कले ना एक्सरे डिफ्रैक्शन करके समान डीएनए रो फोटो बा डाटा देले वाटसन एंड क्रिक को और वाटसन एंड क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल को एक्सप्लेन करे डबल हेलिक्स को एक्सप्लेन करे वन ऑफ द हॉलमार्क्स फॉर देयर प्रोपोजिशन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन टू strands of polynucleate chain then the hallmark kon thila eta मन के one of the hallmarks of their proposition was base pair between two strands of polynucleate chain जे दीरा polynucleate chain निज मध्य रे pairing होचंती सेटा थला तांकर hallmark however this proposition was also based on the observation of Erwin Chargaff for that for a double stranded DNA the ratio between adenine and thymine and guanine in cytosine are constant and equals 1 तने कोन को चार्गाफ रूल विषय में पर पढिबा एडी देखो आउ तापर का ऊपर डिपेंड करता ना एरविन चार्गाफ कोन देखते ना गोटे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पई एडेनिन और थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन रो रेशियो सब कांस्टेंट थाए और इक्वल टू 1 थाए माने जति की एडेनिन थाए सेति की थाइमिन थाए जति की ग्वानिन थाए सेति की साइटोसिन थाए जति की ग्वानिन थाए सेति की साइटोसिन थाए The base pairing confers a very unique property of the property to the polynucleotide chains. They are said to be complementary to each other. Complementary to each other, and therefore, if the sequence of bases in one strand is known, then the sequence in the other strand can be predicted. So, ସେମାନେ complementary to each other. ସେଥିରେ ଗୋଟେ strand ର ଯଦି sequence ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି, ମାନେ ଆର strand ର sequence ବି ଆମେ କହିପାରିବା. Also, if each strand from a DNA let us call it as a parental DNA. Acts as a template for the synthesis of new strand. The two double-stranded DNA, let us call them DNA, the daughter DNA, thus produced would be identical to the parent DNA molecule. Because of this, genetic implication of structure of DNA became very clear. तो कहला जे DNA रा जो बेस पेयर उड़ा था जे ସେମାନେ complementary to each other. सेटा कि जदि गोटे स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जदि जଣା थियो तांको तन अन्य स्ट्रैंड टा भी कोइ पर कहिना सेमने ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर एडेनिन केवल थाइमिन संग कनेक्ट होबो ग्वानिन केवल साइटोसिन संग कनेक्टेड होबो आ काय संग सेमने कनेक्टेड हेबेनी तो सेटा से कहले तते गोटे ये गोटे पेरेंटल डीएनए जदि दी भाग रे भाग होई कि तते रेप्लिकेशन करते जाय जो दीटा डॉटर सेल बनाय सेटा सब बेले आइडेंटिकल टू ईच अदर होबो काहे कि सेमानकर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर सेत किछि नुआ फॉर्मेशन है कि आसीबो ही नहीं. The salient features of double helix structure of DNA are as follows. तने कहला जे double helix structure of DNA रो salient feature कौन It is made up of two polynucleotide chains, whereas the backbone is constituted by sugar phosphate and the bases project inside. तो कौन कहला ना made up of two polynucleotide chain. दीटा polynucleotide chain गोटे 3 days to 5 days direction ना 5 days to 3 days direction run करंती सेटा से मान को देखि made up है तो it is made up of two polynucleotide chains whereas the backbone is constituted by sugar phosphate and the bases project inside. Backbone constituted by sugar phosphate and the bases project inside. sugar phosphate bond होउची तार होउची backbone और तार जो bases था भीतर अछि. The two chains have antiparallel polarity. Two chains have antiparallel polarity. It means if one chain has polarity 5 days to 3 days, then other has 3 days to 5 days. Then it लिखला polarity. तो गोटा डायरेक्शन आउट डायरेक्शन को जो जीवाटा होती तांका polarity लिखला. Two chains have anti-parallel polarity. So 5 days to 3 days, 3 to 5 उल्टा बोली anti-parallel लिखला. The bases in two strands are paired through hydrogen bond. और जो दीटा base होची केमते जोन तांते ना hydrogen bond through join तांते forming base pairs. Adenine forms two hydrogen bond. Adenine forms two hydrogen bond with thymine from opposite strand and vice versa. Similarly, guanine bonded to cytosine with 3 hydrogen bond. As a result, always purine comes opposite to a pyrimidine. Always purine comes opposite to a pyrimidine. This generates approximately uniform distance between the two strands of helix. That is called हम एक साइड लिख दोचे. सेट लिखला जे A
टी जी एमती लिखले तुमरा मन रहिजो जे ए डबल दीरा हाइड्रोजन बॉन्ड करके थायमिन संग थाए एडेनिन आ ग्वानिन दी तीनटा हाइड्रोजन बॉन्ड करके साइटोसिन थाए संगड़ थाए आ सब बेले एडेनिन आ थायमिन एडेनिन सब प्यूरिन सहित pyrimidine कनेक्टेड थाए ता प्यूरिन सहित प्यूरिन के कनेक्टेड थाएनी सहित पई दुईटा जाक स्ट्रैंड मध्ये कोन थाए ना यूनिफॉर्म डिस्टेंस थाए टू स्ट्रैंड्स ऑफ हेलिक्स भितर सब दुईटा ये थाए हेलिक्स में कोन दुईटा स्ट्रैंड्स ऑफ हेलिक्स जो एमती एटीजीसी लागला तापर ताका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हला फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो एमती एमती ताका बॉन्ड फॉर्मेशन ही चला फॉस्फेट 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 तो जो ताका भीतर जो फॉस्फेट फॉस्फेट जो लिंकटा हला जेटा कि दुईटा स्ट्रैंड को हला जते हम एट पड़े जो एटा हो दुईटा स्ट्रैंड को हला एटा जो ब्लू चेटा दुईटा स्ट्रैंड को हला तो से साइड लेखला सब बेले गोटे प्यूरिन गोटे pyrimidine संग कनेक्टेड होची बोले प्यूरिन और pyrimidine मध्य ना दीटा स्ट्रैंड हेलिक्स और दीटा स्ट्रैंड मध्य सबले इक्वल डिस्टेंस मेंटेन हेकि रहे हेलिक्स और दीटा स्ट्रैंड मध्य इक्वल डिस्टेंस मेंटेन हेकि रहे the two chains are coiled in a right-handed fashion the two chains are coiled in a right-handed fashion the pitch of the helix is 3.4 nanometer pitch of the helix is 3.4 nanometer and there are roughly 10 base pair in each turn consequently the distance between a base pair is 3.4 nanometer तो से सेटा कौन लिखला पिच कौन ये कौन कहूचे ना पिच कौन ना गोटे जो एठी टर्निंग हला एठी जो ए जगह टर्निंग हला एमि और पुणी थरे एमते मुड़ी के पुणी थरे से जगह सेमते टर्निंग हवा को गोटे पिच को हला माने एठी धर जो एटा देखि ए जगह तुम आराम से बुझबे देखो ए जगह एठी एमती अछि ए जगह एठी एमती अछि दिले जगह एटा एमती के मुड़ीची एमती छोटो एठी छोटो टर्निंग तापर एठी बड़ टर्निंग पुणी एठी छोटो टर्निंग बखरे आछि तो से सेटा लिखला पिच माने कोन ना सेम टर्निंग जतल ना सेटा राइट हैंडेड फैशन में एमती बुली बुली अछि ना एमती राइट हैंडेड फैशन रो बुली बुली अछि ना तो 8 टर्निंग एटा तो गोटे छोटो टर्निंग देखाउ जे छोटो टर्निंग एठी बड़ टर्निंग 8 टर्निंग आ 8 टर्निंग परस्पर को आइडेंटिकल तो सेटा लिखला पिच जे सेम टर्निंग ने कि सेम लाइन को आसीबाटा को सेटा पिच को वाला तो कहले जे गोटे पिच और डिस्टेंस केते गोटे पिच और डिस्टेंस केते ना 3.4 नैनोमीटर 3.4 नैनोमीटर बा 34 एंगस्ट्रॉम आ कोन लिखले ना गोटे पिच 10टा बेस पेयर अछि 10टा बेस पेयर अछि तने गोटे बेस पेयर रे केते रहइबो तने 3.4 by 10 equal to 0.34 नैनोमीटर बा 3.4 एंगस्ट्रॉम तमे गोटे इंच मन रखो एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर पुनी कंफ्यूज हो तो से सेटा लिखला जे गोटे टर्न ना वो जो हेलिक्स जो गोटे पिच आसला गोटे पिच केते डिस्टेंस रहउची which is called in right-handed fashion coil ହେଇଛନ୍ତି the pitch of the helix is 3.94 nanometer as the 10टा बेस पेयर अछि त गोटे दीटा बेस पेयर मध्ये डिस्टेंस केते 0.34 nanometer the plane of one base pair stacks about the other in double helix this in addition to the hydrogen bond confers stability to the helical structure the plane of one base pair stacks about the other in a double helix this in addition to hydrogen bond confers the stability to the helical structure এটা সিগা লিখলা the proposition of a double helix structure of DNA and its simplicity in explaining the genetic implication became very revolutionary very soon Francis Crick नाम उनका Francis Crick proposed a central dogma in molecular biology कौन propose कले ना central dogma in molecular biology which states that the genetic information flows through DNA ru DNA RNA तापर कौन ना protein तो सेंट्रल डॉगमा कौन ना डीएनए तो ट्रांसक्रिप्शन है कि एमआरएनए ट्रांसलेशन के प्रोटीन और डीएनए पुनी निजरा रेप्लिकेशन करी पुनी थरे डीएनए बनेला बट मॉडिफाइड सेंट्रल डॉगमा कौन ना एमआरएनए भी पुनी थरे डीएनए बने परियो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के करना रेट्रोवायरसेस मान कर हुए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से कथा लेकिन बट तुम पय एबेटा जरूर नै तुम खाली एबे नॉर्मल सेंट्रल डॉगमा मन रखिबो जे सब जेनेटिक इनफॉरमेशन डीएनए रु आरएनए को जाए आरएनए रु प्रोटीन को जाए तो सेटा होची आ डीएनए टा रेप्लिकेशन डीएनए बनाए तो सेटा हला सेंट्रल डॉगमा बट जेनेटिक इनफॉरमेशन जाउची केबे जेनेटिक इनफॉरमेशन को जीन रो जो सीक्वेंस अछि जेनेटिक इनफॉरमेशन जीन रो जो सीक्वेंस अछि तारो जो ट्रांसक्रिप्शन को आरएनए फॉर्मेशन हला त सेटा जेनेटिक इनफॉरमेशन को आगो को नेला तापर आरएनए टा जो ट्रांसलेशन है कि प्रोटीन बनेला सेटा जेनेटिक इनफॉरमेशन को एक्सप्रेस कर काने प्रोटीन माने एंजाइम
तार गोटे कन्स्टिट्यूटिव प्रोटीन हो या कैटालिटिक प्रोटीन हो सेटा जहाले भी हम मेटाबॉलिज्म रे काम दो मेटाबॉलिज्म रे इन्वॉल्व हो तार जेमिति प्रोटीन डीएनए हिसाब रे जेमिति भी प्रोटीन तयारी हो सेमिति हम मेटाबॉलिज्म हो तो सेमिति हमरो निजर फेनोटाइपिक कैरेक्टर लाइक हमरो फिजियोलॉजिकल फीचर्स या ये सब जेनेटिक फीचर्स सब एक्सप्रेस हो कि गोटे धर जो गोटे प्रोटीन फॉर्मेशन हो तो जोटा कि मेलानिन सिंथेसिस या रिटेंशन बढ़ाउथो जाफल कोन मनुष्य कला हबो जार कम होतो तार मनुष्य गोरा हबो तो से सही कथा लिखि तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन एमएदे ट्रांसफर हुए थ्रू सेंट्रल डॉगमा डीएनए रेप्लिकेशन के निजर डीएनए बनेला सेटा हमर स्पर्म और ओव्यूम को गला बा न्यू न्यूक्लियस बनेला तापर कोन डीएनए टा ट्रांसक्रिप्शन के आरएनए गला माने से जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो डीएनए थिला जे एई प्रोटीन टा बनिबो तार जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए रे अछि तो डीएनए रो से ट्रांसक्रिप्शन के एमआरएनए गला एमआरएनए रो कोन बे ना से पुनी ट्रांसलेशन प्रोसेस को टीआरएनए आसीबो तापर एमआरएनए रो सब नै कि सेठी राइबोसोम आसीबे तापर प्रोटीन सिंथेसिस हो सेटा हो ट्रांसलेशन हला देखि प्रोटीन टा कोन करे प्रोटीन टा होछ हमर जीन रा एक्सप्रेशन प्रोटीन टा को ही हमें जीन रा एक्सप्रेशन बोली को से प्रोटीन जा काम करबो हम बाहर भी हमें मॉर्फोलॉजिकल भी बा एनाटॉमिकल भी हमें सेमती एक्सप्रेशन देखेबो माने सेमती कैरेक्टरिस्टिक्स शो करबा सेटा सेट में कोला सेंट्रल डॉगमा होछु the flow of genetic information. Central dogma in the molecule shares the genetic information towards the DNA, RNA, protein. तो central dogma हो जी एमिति. एडी समय लेक्चर है देखो जो in some viruses flow of information is in reverse direction that is RNA to DNA. ताको कहला कोन retroviruses कहला ताको reverse transcription कहा जाए. तो ए पर्यंत हम कोन गला डीएनए कोन सेंट्रल डॉगमा कोन डीएनए रो कैरेक्टरिस्टिक फीचर कोन एडेनाइन गुआनाइन प्यूरिन पिरिमिडिन एवडा सब कोन ताको भीतर बेस पाए केमि हो ए थे तापर एबे हम पुडिया कोन ना पैकेजिंग ऑफ डीएनए तो डीएनए जे एतोडा जिंस पत्र अछि जे गोटे तमे हिसाब करो दीटा बेस पाए भीतर डिफरेंस केते ना 0.34 नैनोमीटर अब हमर अछि केते 3.3 3.3 into 10 to the power 9 base pair 6.6 तो ताको जदि हमें कैलकुलेट करबा 6.6 into 10 to the power 9 मल्टीप्लाई करो 0.34 नैनोमीटर त केते होछ 2 मीटर अधिक होछ बट हम सेल टा 2 मीटर रो की केबे नै सेल टा हमर बहुत छोट तो डीएनए एते लंबा डीएनए सेल भीतर रहउछ कि हमर इंडियन माने 2 मीटर भी हेबे एवरेज है तो डीएनए केमती गोटे 2 मीटर रो गोटे न्यूक्लियस भीतर रहि होउची सेटा में हम पढिया छै पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स एडा से पूरा लिख देला जे डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर हबो और मामले से ना 6.6 into 10 to the power 9 अछि मल्टीप्लाई करले 2.2 नैनोमीटर 2.2 मीटर अछि हम इंडियन लोक मन हाइट भी सेते होएनी ते एते बड़ लेंथ रा हम बॉडी रे रहउची केमती समझे इकोलाई रो डीएनए लेंथ हो 1.6 1.3 mm बट इकोलाई भी बहुत छोट तार पर नंबर केते नंबर त हम पढि के आछे आ कैलकुलेट कम करिया in prokaryotes such as E. coli though they do not have a defined nucleus the DNA is not scattered throughout the cell E. coli जेमते prokaryotes से माने उसिना तांकर defined nucleus नहीं but समग्र DNA भी हमसे scattered न था nucleus रे DNA being negatively charged held with some protein that have positive charge in a region termed as nuclear तांकर जो जगह जो DNA था से जगह को न्यूक्लियोइड कहा जाए सोडा गोटे सेठी डीएनए टा गोटे लूप भाबे अरेंज थाए आ सेठी से माने अन्य जगह न जाई से एरिया काई थांती ना डीएनए टा होची नेगेटिवली चार्ज ताऊ किछि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन माने होल्ड करी रखथान सेहि पे से न्यूक्लियर एरिया रे डीएनए टा थाए से माने पूरा सेल स्कैटर्ड होते जदियो समान को न्यूक्लियस नहीं प्रोकैरियोट्स लाइक इस्चेरिचिया कोलाई तब यूकैरियोट्स कथा आसीबा in eukaryotes this organization is much more complex eukaryotes kon organization kon much more complex there is a set of positively charged basic proteins called histones a histone acquires charge depending upon the abundance of amino acid residues with charged side chains तर कोन अछि ना eukaryotes मानकर गोटे positively charged protein अछि जरा गोटे histone protein अछि से protein कोन तै चार्ज एकर केमति करतै ना जत्ते की भी एमिनो एसिड रहला जत्ते की भी बेसिक एमिनो एसिड रहला बेसिक एमिनो एसिड माने कोन तार NH2 ग्रुप अधिका थिबो NH2 अधिका थिबो माने से माने तमे यदि केमिस्ट्री पढितो ज्यूट्राइन फॉर्म ये का
तो NH जते बेसिक हो सेटा कोन हबो एमिनो एसिड ता साथे पॉजिटिव ही जो तानु जदी प्रोटीन रे हिस्टोन प्रोटीन रे जदी बेसिक एमिनो एसिड रहला सेटा पॉजिटिव चार्ज तो से कथा लागछि हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक एमिनो एसिड्स रेसिड्यू लाइक लाइसिन एंड आर्जिनिन the both of the amino acid residues carries positive charge on the side chain. Histones are organized to form a unit of 8 molecules called histone octamer. Histone माने सांगर मिसी कौन कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर बनाती the negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure called nucleosome. न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन करते ना नेगेटिवली चार्ज डीएनए टा रैप में गुड़े जाए का चारिपटे ना पॉजिटिवली चार्ज सिस्टम चारिपटे ताको न्यूक्लियोसोम कहती आ इन टाइपिकल न्यूक्लियोसोम रे कहते 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स था न्यूक्लियोसोम के देता है ना 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स था द न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द रिपीटेड यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन मासे क्रोमैटिन गुडा गुड़े ही थांती एथ्रेलाइज स्ट्रैंड्स कलर बॉडी सीन द न्यूक्लियोसोम्स इन द क्रोमैटिन आर सीन इन beads on string structure when viewed under electron microscope तो सही कथा लिखला से एते कथा बेस लिखिनी तो एटा देखो हिस्टोन ऑक्टामर एटी हिस्टोन अछि हिस्टोन ऑक्टामर कोन अछि ना से जो गोलटा बनेला एटा जो हिस्टोन ऑक्टामर बोला सेटा केमते फॉर्मेशन हुए ना H2A H2B H3 H4 एटा हो जे हिस्टोन रो जो चारटा हिस्टोन चारि प्रकार मेली H1 H2A H2B H3 H4 तो H2A H2B H3 H4 मिसी कोन कहंती ना हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हिस्टोन ऑक्टामर चारिपटे कोन ना डीएनए टा एमते गुड़े केते डीएनए गुड़े केते ना 1 3/4 टर्न ने डीएनए टा 1 3/4 टर्न ने आ तापरे कोन ना एटा जे टिके बारी आस्ते डीएनए टा आउटे न्यूक्लियोसोम चारिपटे गुड़े पई एटा जो लिंकिंग डीएनए थाए सेटा लगभग 30 बेस पेयर रहथाय टोटली 166 से केमते बेस पेयर थाए टोटल के 196 बेस पेयर होची माने बोरे कोन 200 बेस पेयर तो अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयर नेके गोटे हिस्टोन प्रोटीन हुए आ सेठी H1 हिस्टोन जो अछि H1 हिस्टोन सेटा थाई क्लैंपिंग करी रखे क्लैंपिंग माने डीएनए टा हिस्टोन रो खसी न जीवो देखो हिस्टोन टा को गुडे देला ना सॉरी डीएनए को हिस्टोन चार पूरा गुडे देला ना तारे जदी खसी के न चल जीवो तेत में H1 हिस्टोन थाई कोन थाई H1 हिस्टोन ताको क्लैंप करी रखते तो सेटा होची एमटी है कि न्यूक्लियोसोम रो फॉर्मेशन हुए ताने हिस्टोन ऑक्टामर होची हिस्टोन कोन थाई ना H2 H2B H3 H4 थाई तापर H1 हिस्टोन टा कोन करना क्लैंपिंग रे काम करे तो 200 बेस पेयर थाई ना क्रोमैटिन टा गोटे पूरा टर्न आउट 3/4 टर्न लिए आ ता लिंकिंग डीएनए लगभग 30 बेस पेयर था सेटा लिंक करे आउट न्यूक्लियोसोम को तो एटा थला हिस्टोन ऑक्टामर और न्यूक्लियोसोम ये ए देखो तुम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखियो तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग माने गोटे दौड़ी ऊपर केतोडा गंठी पकाई छि बा बीड्स लगाई छि सेता से बडा देखा जाउछि से बडा देखा जाउछि बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस The beads on string structure in chromatin is packaged to form chromatin fibers that are further coiled and condensed at metaphase stage of cell division to form chromatin. ये जो beads on string structure देखा chromatin रो समय कौन था ना पुणे और coil की condensed था आती metaphase stage रे condense stage की chromosome बनाती ये chromosome देखिए एबीसी नॉर्मली एमिति है कि अछंती एमिति क्रोमोसोम रे अछंती बड़ जत मेटाफेज था सेत से माने पूरा क्रोमोसोम बनै दियंती माने न्यूक्लियस रे आगु खाली एमिति क्रोमैटिन माने थांती बिडेड है कि थांती बट कंडेंस्ड है कि थांती बट जत मेटाफेज स्टेज रे कोन हुए मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस रे तो माने क्रोमोसोम से माने आउरी कंडेंस है क्रोमोसोम बनै दियंती तो सही कथा से लिखिछि द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स that are collectively referred as non-histone chromosomal protein तो हायर लेवल पे कौन था ना एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स दरकार पड़े ताको non-histone chromosomal protein कहते in typical nucleus some region of chromatin are loosely packed that is tense light are referred to as euchromatin जैसे loosely packed था euchromatin कहते और the chromatin that is morely dense होची heterochromatin euchromatin is said to be transcriptionally active chromatin whereas heterochromatin is inactive तो सेट लिखला जब हायर लेवल जब कंडेंसेशन हुए जब हायर लेवल कंडेंसेशन हुए तो हायर लेवल कंडेंसेशन टाइम आउ हिस्टोन अलावा आउ किछि गुडा प्रोटीन थाने जमन को नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहंती उन हायर लेवल कंडेंसेशन करंती आ गोटे टिपिकल न्यूक्लियस रे किछि रीजन रे क्रोमैटिन गुडा को लूजली पैक्ड थांती जमन स्टेनिंग कले से माने लाइट स्टेन नियंती जैसे लूजली पैक्ड मान कहंती यूक्रोमैटिन आगे तो डेंसली पैक्ड थांती सेमन को डेंस स्टेन एक्वा कहंती बेसिक स्टेन एक्वा कहंती सेमन को हेटेरोक्रोमैटिन कहंती यूक्रोमैटिन लूज था सेत में से इजीली
ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव थाए हेटेरोक्रोमैटिक ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव न थाए तो एतिक हम देखला जो डीएनए विषय देखले तापर कोन सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल जे हम जेनेटिक मटेरियल को सर्च करते कले इवन दो द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियन बाय Mr. Discovery of nucleon by Mr. that is Mr. and the proposition of principle of inheritance by Mendel were almost at the same time, but the DNA as a genetic material took long to be discovered and the proven. Then DNA would genetic material बोली prove करेगा तो बहुत time लगता है. By 1926, the quest to determine the mechanism for genetic inheritance had reached the molecular level. तो ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଉପରେ ଟେନସନ ନଥିଲେ ସବୁ ତ ହେଲା ମେଣ୍ଡେଲ ଇନହେରିଟାନ୍ସ ହେଲା ଯାହା ବି ହେଲା बट ए जेनेटिक मटेरियल टा कोन को जिंसटा ट्रांसफर होची जेटा के हम डीएनए होची ना आरएनए होची ना प्रोटीन होची कोनटा ट्रांसफर होची तो सेमा सेटा रिसर्च करके सम मॉलिक्यूलर लेवल पहुंचेतले प्रीवियस डिस्कवरीज बाय जॉर्ज मेंडेल ना ग्रेगर मेंडेल सटन मॉर्गन बोवेरी न्यूमरस अदर साइंटिस्ट हैड narrowed to the search for the chromosome search to the chromosomes located in the nucleus of the mouse cell but the question of what molecule is actually genetic material has not been answered तो समय कॉलेज प्रीवियस एक्सपेरिमेंट जति सब मेंडल एक्सपेरिमेंट सटन एंड बॉवेरी एक्सपेरिमेंट मॉर्गन एक्सपेरिमेंट तब सब एक्सपेरिमेंट पर प्रूफ माने कर दितला जे क्रोमोसोम भितरे ही किछि अछि जेटा कि हमर जेनेटिक प्रक्रिया क्रोमोसोम भितरे ही किछि अछि जेटा कि हमर जेनेटिक मटेरियल बट सेटा कोनटा जिंसटा हमने समय जानि पार नथले ताबरे असले ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ताबरे असले ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ना 1928 एटा सब फेमस एक्सपेरिमेंट 1928 रे कोन करला फ्रेडरिक ग्रिफिथ कोन करले इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरियम रेस्पोंसिबल फॉर निमोनिया जो बैक्टीरिया निमोनिया पे रेस्पोंसिबल से बैक्टीरिया नाम कोन ना स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ताको ने फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट करथिले कोन करथिले विटनेस्ड ए मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया विटनेस्ड ए मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट ए लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैड चेंज्ड इन फिजिकल फॉर्म इजरो एग्जाम कौन देखला ना जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया निजर फिजिकल फॉर्म को चेंज करछि केन चेंज करछि व्हेन द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया गॉन ऑन ए कल्चर बेड सम प्रोड्यूस स्मूथ शाइनी कॉलोनीज व्हाइल अदर प्रोड्यूस रफ कॉलोनी किछि ओ बैक्टीरिया कौन कले ना स्मूथ शाइनी कॉलोनीज फॉर्मेशन कले आ किछि रफ कॉलोनी फॉर्मेशन कले दिस इज बिकॉज़ द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव ए म्यूकस कोट एस स्ट्रेन बैक्टीरिया कौन थला एस स्ट्रेन बैक्टीरिया कौन थला ना गोटे म्यूकस कोट थला जेटा गोटे पॉलीसैकेराइड करथला आ आर स्ट्रेन पाखर नथिला आर्सन बगन नथिला तो सेट लिखले माइस इन्फेक्टेड विथ एस्ट्रेन जेटा virulent माने जेटा फाटल virulent डाई फ्रॉम निमोनिया इन्फेक्शन बट माइस विथ एस्ट्रेन डू नॉट डेवलप निमोनिया तो एति कथा लिखला जे एटी पूरा समरी लिखिछि एस्ट्रेन जेटा गोटे स्मूथ अपीयरेंस सिल्की स्मूथ शाइनी कॉलोनीज बनाए काहे ता पाखर गोटे म्यूकस बा पॉलीसैकेराइड कोट अछि सेटा को जदी माइस भीतर इंजेक्ट करायला सेटा virulent तो माइस मरियला मुसा मरियला बट आर स्ट्रेन जेडे रफ स्ट्रेन जा पर पॉलीसैकेराइड कोट नाही ताको जदी माइस भीतर इंजेक्ट कराला ताने माइस बंची गला मुसा मरिला Griffith was able to kill the bacteria by hitting them. He observed that the heat kills Astran bacteria injected into mice did not kill them. देख रहे तो जितना हीट किल करिकी जितना एस्ट्रेन बैक्टीरिया को मुसा भीतर पड़ले तादर मुसाटा मरला नहीं when he injected a mixture of heat kill S and live R bacteria, the mice died. Moreover, he recovered living S bacteria from the dead mice. He concluded that the R strain bacteria had somehow been transformed by the heat kill S strain bacteria, some transforming principle. तने Griffith कौन बात करते हैं ना transforming principle देते हैं. Transforming principle transferred from the heat kill S strain had enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent. This must be due to transfer of genetic material. However, the biochemical nature of genetic material was not defined from his experiment. तो कौन आला? तने एटा भी मन रखो. तने समझ लेते हैं 1928 रे फ्रेडरिक ग्रिफिथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया जेटा कि निमोनिया कॉज करे ताको ने कि गोटा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कले. से देखले स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई दी प्रकार कॉलोनी बनाए. गोटा होचे स्मूथ शाइनी कॉलोनी जेटा को एस्ट्रेन कहा जाए आ गोटा होचे रफ कॉलोनी जेटा को एस्ट्रेन कहा जाए. एस्ट्रेन मानक पाखर कोन ताय ना गोटे म्यूकस पॉलीसैकेराइड कोट ताय जेटा कि एस्ट्रेन पाखर न ताय. तो एस्ट्रेन टा कोन एस्ट्रेन टा होचे इन्फेक्टिव एस्ट्रेन टा होचे virulent एस्ट्रेन कोन ना जानलेवा माने मुसा को मारी परिबो बट आर स्ट्रेन टा कोन मुसा को मारी पर नहीं. तो से फर्स्ट एस्ट्रेन को मुसा को देले मुसा मरियला आर स्ट्रेन मुसा को देले मुसा मलानी. तो तापर कोन हला ना से कोन करले हिट किल करि पड़ला माने गरम करके बैक्टीरिया को मारी पड़ले. तापर से कोन करले एस्ट्रेन को से गरम करके मुसा भीतर इंजेक्ट करले
ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୂଷାଟା ମରିଲାନି, ମୂଷାଟା ବଞ୍ଚିଲା। ତାର ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମରିଲା, ମୂଷା କେମିତି ମରିବ? ତ ମୂଷାଟା କଣ ହେଲା, ବଞ୍ଚିଲା। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲେ, ଯେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ହିଟ୍ କିଲ୍ କରିକି ମାନେ ମାରିକି ତାକୁ ଯଦି ଆର୍ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କଲେ ମୂଷା ଭିତରକୁ, ତାହେଲେ ଦେଖାଲେ କଣ ନା ମୂଷାଟା ମରିଗଲା। ମୂଷାଟା କଣ ହେଲା ନା ମରିଗଲା। ଆର୍ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ହିଟ୍ କିଲ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ମୂଷାଟା ମରିଗଲା, ତ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେ ଡେଡ୍ ବଡିରୁ ରିକଭର କଲେ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଲିଭିଂ ଏକ୍ସଟ୍ରେନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମିଳିଲା। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଏକ୍ସଟ୍ରେନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ମୁଁ ତ ମଲା ଏକ୍ସଟ୍ରେନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଲିଭିଂ ଆର୍ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦେଇଥିଲି, ସେଥିରେ ମୂଷା ମରି ବି ଗଲା, ବା ସେଟା ଫାଟାଲ ଇନଫେକ୍ଟିଭ ବି ହେଲା, ଆଉ ଲିଭିଂ ଏକ୍ସଟ୍ରେନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବି ରିକଭର ହେଲା। ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଏକ୍ସଟ୍ରେନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବି ରିକଭର, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆର୍ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦେଇଥିଲି, ଏକ୍ସଟ୍ରେନ୍ ଦେଇନଥିଲି। ତ ସେଇଠୁ ସେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ, ତ ସେଇଠି କିଛି ତ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି, କିଛି ତ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି, ଯେଟା କି ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରେନ୍ ଦେଲା ଯୋଗୁ ଆର୍ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କୁ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରେନ୍ ରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେଲା। ତ ସେଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫରିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କୁ ସେ ଜେନେଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲ ବୋଲି ଡିସାଇଡ୍ କଲେ, ଯେ ସେଇଟା ହିଁ ଜେନେଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲ ହେଇଥିବ। ତ ତାକୁ ନେଇକି ସେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଏଇଟା କଣ ହେଲା, ବଟ୍ ସେ ନିଜେ ଖୋଜିକି ପାଇପାରିଲେନି ଯେ ସେ ଜେନେଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲ କଣ, ସେ ନିଜେ ଖୋଜିକି ଯାଇପାରିଲେନି ଜେନେଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲ ଟା କଣ। Prior to the work, the biochemical characterization of transforming principle. The biochemical characterization कौन? Prior to the work of Oswald Overy, Colin McLeod McCarthy, ताकि कौन Avery McLeod McCarthy. The genetic material was thought to be protein. ये Avery McLeod McCarthy रो experiment आगुरु, जैसे 1933 1944 बदले genetic material का भावते ना protein को genetic material बोल भावते. They work to determine the biochemical nature of transforming principle of Griffith experiment. तो ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଯୋଉ ଗ୍ରିଫିଥ ଦେଇଥିଲେ, ସେଟା ଗ୍ରିଫିଥ ନିଜେ ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେ ସେଟା କଣ, ସେଟା ସେମାନେ ବାୟୋକେମିକାଲ ନେଚର ଖୋଜିବାକୁ ଚାଲିଲେ। ତ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଦେ ପ୍ୟୁରିଫାଏଡ ବାୟୋକେମିକାଲ, ଯେଟା କି ପ୍ରୋଟିନ୍ସ DNA RNA, ପ୍ରୋଟିନ୍ DNA RNA को प्यूरिफाई कले फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल, हीट किल्ड एस सेल प्यूरिफाई कले to see which ones could transform the live R cell into S cell. They discovered that DNA alone from S bacteria caused R bacteria to become transfer. से कौन कले ना सही जो एस्ट्रेन बैक्टीरिया ସେମାନେ प्रोटीन को अलग करले, डीएनए को अलग करले, आरएनए को अलग करले। आरएनए को अलग करी कौन कले ना गोटे टेस्ट ट्यूब रे प्रथम आर्स्ट्रेन बैक्टीरिया थिला, सेथिरे एको पकेले, गोटे डीएनए पकेले, आरएनए पकेले, प्रोटीन पकेले। तो ସେମାନେ कौन देखले, ओनली द डीएनए वालाटा ही आर्स्ट्रेन को एस्ट्रेन में कन्वर्ट करला, बाकी के जन कर पारे। तो सेही ସେମାନେ देखले कौन ना डीएनए ही genetic material ହେଇଥିବ। They also discovered that the protein digesting enzymes proteases and RNA did not affect the transformation, so the transforming substance was not protein RNA. Digestion with DNS did inhibit transformation. Digestion with DNS did inhibit transformation, when the DNA caused the transformation. They concluded that DNA is the hereditary molecule, but not all biologists were concluded. फिर भी सब बायोलॉजिस्ट माने मालूम से देखले जे जेताले प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीन देला, तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीन दियाला, तो डीएनए ना आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम आरएनए दियाला। तो सत्ते बेले कोन हला ना सत्ते ट्रांसफॉर्मेशन हेलानी, तो कोन हला ना सत्ते बेले भी माने जो डीएनए वाला कोन कर से सबुडा पके दितला ना, से सबुडा पके दितले, तो देखले आरएनएस और प्रोटीएजेस देबा जोगु भी किछि चेंजेस आसलानी। आर्स्ट्रेन कोन हला ना एस्ट्रेन दा नॉर्मली कन्वर्ट ही होला, पर जब देखला जे डीएनएस जतल देले, डीएनएस माने कोन एज जति सब एंजाइम जेटा सब क्लीविंग करंती बा डिस्ट्रक्शन करंती गोटे मॉलिक्यूल को, ताको ना लास्ट रे एस लगा दे, एएससी गोटे सफिक्स दिया जाए, सेटा सब कटाकटी एंजाइम मान को सेटा दिया जाए। तो सेटा से कहला से देखले जे जत्ते बेले से लास्ट रे डीएनएस देले तो कोन होला ना से आर स्ट्रेन आउ एस स्ट्रेन को कन्वर्ट ही पला ना, से आर स्ट्रेन को ना एस स्ट्रेन को कन्वर्ट ही पला ना। तो सेउड से माने कोन कंक्लूड करले तर डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल जेटा कि ट्रांसफॉर्म करूची। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया टू एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। तर डीएनए दा जेनेटिक मटेरियल, फिर भी केते गुडा को बायोलॉजिस्ट कोन होला ना कन्विंस्ड होला ना जे डीएनए टा ही जेनेटिक मटेरियल हेतो, ताको आउट के प्रूफ दरकार अपन, ताको आउट के प्रूफ दरकार, ताको सेटा भी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दिया जबो आउट के प्रूफ जे ताको दरकार पड़ी, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दिया होला।
तापर टॉपिक टा कोन छै द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए तापर मार्था जे जो अल्फ्रेड हार्सी रे एक्सपेरिमेंट आसीबो तो आज क्लास पे एति की पढिले जे डीएनए कोन जे डीएनए कोन डीएनए कार जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए कोन ना चैप्टर तापर डीएनए कोन डीएनए इनहेरिटेंस कोन तापर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कोन तार डीएनए रो ये कोन सेंट्रल डोग्मा कोन डीएनए रो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन साइलेंट फीचर्स कोन सेंट्रल डोग्मा कोन पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स केमति हुए पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स केमति हुए पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स केमति हुए तापर हिस्टोन प्रोटीन कोन हिस्टोन ऑक्टामर कोन तापर सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल केमति हला केमति केमति सर्च करे जे जेनेटिक मटेरियल केमति मिलिबो तापर ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट तो एई सब वाला आज पॉइंट टॉपिक एति सला तब नेक्स्ट 5.2.1 रो पढिबा